Welcome to Inside News. I'm your host Jyoti, bringing you the latest updates. Let's get started. In Washington, D.C., preparations for the 2024 U.S. election are in full swing, showcasing a vibrant tapestry of engagement from both the Indian and American communities. Various events highlight the enthusiastic participation of community members, including rallies, voter registration drives, and informational sessions aimed at raising awareness about key issues. The atmosphere is charged with discussions on topics like immigration, healthcare, and economic policies as diverse voices come together to advocate for their concerns. This collaborative spirit reflects a commitment to civic duty and underscores the importance of representation in the electoral process, with both communities working hand in hand to shape the future of the nation. Talking about the Indian Americans at the ballot box, they're much stronger than ever. Talk to us about the candidates and the policies that resonate with you. I mean, for me, economy is important. You know, how expensive the things are these days. Of course, the border issues with illegal immigration, you know, at record high. Right. Now, with the election so close to call, every vote matters. One group that's expected to greatly influence the U.S. election is the Indian American community, one of the most politically active communities in the country at this point. Talk to us about how does the Indian American vote matter and what are they really thinking? I mean, I can't speak for everyone. You know, everyone has, you know, feels differently about certain issues. I mean, if you have to guess, a lot of Indian American are business owners, and for them, economy is important. And I think the last 4 years we have seen a president who has been pretty much absent, and the person who's replacing him said she would change nothing about him, and has also flip-flopped on many issues. For example, fracking. And the person, her running mate, Tim Walz, also lied in 2018 about carrying weapons of war in combat, and was asked in the debate, and you saw what happened. So you can't, right now I'm undecided. You can't really trust both of them, you know, as to, and you know, they both lie about, you know, certain issues, but you know, if I right now had to pick one, I would go with Trump, mainly on economy. You look at like wars under him, we weren't under any wars. You look at Ukraine, Russia, you look at the Middle East, you have like 40-some thousand people die. You know, on one hand we're supplying weapons, and on the other hand we're calling for ceasefire, because you don't have a strong leadership. Right. Now, traditionally, Indian Americans have always been voting for the Democrats, but there are surveys that suggest differently. There has been an uptick in the Indian Americans who support Trump. What's your impression? And this group is largely, you know, men under 40. I mean, it's mainly, again, I would, this election, they will pretty much look at economy and how the president for the last 3.5, I would say, has been absent. And for Indian American, it's pretty, the mindset is business pretty much, you know, and they will vote based on that. Right. Also, there is a special equation between Prime Minister Modi and Donald Trump. Do you see that play out remotely in this election? I don't think so. I mean, Modi has gotten along with Trump and Joe Biden. It's not like our relationship are in bad shape, like Canada, for example. You know, so I don't think that has any, you know, causal factor as to, you know, people who support BJP will vote for Trump. Nor that Modi has said anything, you know, openly that, you know, vote for
Donald Trump, So I think the relationship was good, whether it's a Democrat or Republican. And you saw Modi come twice. It has not happened in the history of India that, a leader of India was invited twice to speak in USA. So, All right. Thank you so much for talking, Darren. I appreciate it. thank you. My name is Rajesh. Pramod Tiwari of the Congress Party has responded sharply to recent tweets by Prime Minister Narendra Modi, emphasizing the need for accountability and action in the face of rising violence. This comes in the wake of a tragic incident where 2 migrant workers were shot by terrorists in Jammu and Kashmir. Raising significant security concerns, Congress President Mallikarjun Kharge also took to Twitter to condemn the violence and call for stronger measures to protect vulnerable communities. Meanwhile, Assam Chief Minister Himant Biswa Sharma has been vocal about the state's security challenges, highlighting the necessity for coordinated efforts among various political leaders to address these pressing issues effectively. Together, these developments reflect the ongoing political discourse surrounding safety and governance in the context of recent violent events. मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं कि झूठों का सिलसिला बंद करिए। कितने झूठ और देश से बोलिएगा आप? कम से कम दीपावली तो बचा लेते हैं, जो पाप पर पुण्य की विजय का त्योहार है, अंधेरे पर रोशनी का त्योहार है, उस दिन तो ना बोलते। अरे छोड़िए, हमने देश आजाद कराने को कहा था, किया, प्रिवी पर्स खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और आप भूल गए 25 रुपए लीटर पेट्रोल बनाने का 2014 का वादा। हर को 15 लाख मिलेगा, वो वायदा। हर किसी को, किसान को दुगनी उसकी पैदावार होगी, वो वादा भूल गए आप। आप भूल गए कि आप ही ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। हमने तो जो कहा हिमाचल में, जो कहा कर्नाटक में, जो कहा तेलंगाना में, पूरा किया है और पूरा करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, बड़े दुख के साथ, चूंकि आप बोल गए इसलिए जवाब देना पड़ रहा है। आप ही ने तो कहा था, जब चीन की बात उठाई थी हम लोगों ने पार्लियामेंट में, तो आप ही ने तो कहा था न कोई आया है, न कोई आया है, न कोई आएगा। तो फिर ये वापस कौन चला गया? चीन की सेनाएं कहां से पीछे हटी? क्या ये सच नहीं कि वहां आपको गश्त लगाने का अधिकार नहीं रह गया? तो कम से कम पहले अपने दामन में झांका कीजिए, फिर उस पार्टी के बारे में बोला कीजिए जो अपने नेताओं के प्राण दे देती है पर वचन पूरा करती है। मैं भी कह रहा हूं कि उनके वायदे झूठे निकले हैं। मैं उनको झूठा नहीं कहता, पर उनके वायदे सारे झूठे हैं। और मैं गिना रहा हूं, कहां गया पेट्रोल सस्ता, डीजल। कल ही दिवाली पे उनकी भेंट मिली है, सिलेंडर का दाम 62 रुपए बढ़ गया है। कहां महंगाई नियंत्रण करने की बात गई, कहां 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात गई, और 15 लाख तो मोदी जी भूल ही गए हैं आप। तो वायदे झूठे करना मोदी जी की परंपरा है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटना हो रही थी, हाल ही में भी घटना हुई जिसमें 2 प्रवासी श्रमिकों को गोली मार दिया। वो दोनों प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और ये सिलसिला जारी है। रोज कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। जब से वहां पर आपने राज्य का दर्जा खत्म किया, जब से आपने स्वयं नियंत्रण में लिया कानून व्यवस्था, ये हालात है वहां के। ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आती है कानून व्यवस्था। क्यों हत्याएं हो रही? जवाब दीजिए, इसकी जवाब दे भाजपा सरकार। अपने हलफनामे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर विवाद में रांची के जीएम उम्मीदवार महुआ माझी कहना है कि भाजपा को वास्तविक काम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ धर्म की राजनीति। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, महुआ माझी सांसद हैं, उन्होंने जो कहा सोच समझकर कहा होगा, जिम्मेदारी से कहा होगा, और कोई विवाद नहीं। जो आदमी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका है, उसके दूसरे कार्यकाल में आप उम्र का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे कहीं से शर्म करो भाजपा वालों। वहां सरकार फिर से बनने जा रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। यूपी में लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चरमरा गए, लेकिन
भाजपा नेता कहते हैं कि सब कुछ चाक चौबंद, अभी हाल ही में ऐसी घटना है, निर्मम घटना है, क्या होगी? सावन के अंधे को हरे हरे सूझता। फतेहपुर में एक पत्रकार की हत्या, इलाहाबाद में हत्याओं का सिलसिला जारी, सारे जिलों में हर जगह से जैसे इस समय कानून का राज ही नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया, वो स्थिति हो गई। Neeraj Kumar of the Janata Dal United and Mrityunjay Tiwari from the Rashtriya Janata Dal have both expressed strong criticisms of Prime Minister Modi in light of the recent violence in Jammu and Kashmir, where 2 migrant workers were tragically shot by terrorists. Their comments highlight concerns over the safety and security of marginalized communities in the region. Meanwhile, in political developments, Hemant Soren's age has become a topic of discussion following his affidavit, raising questions about transparency and accountability among political leaders. Together, these issues reflect the ongoing challenges in governance, security and public trust in the political landscape. संदर्भ में अपनी राय व्यक्त किया है, लेकिन यह सच है कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब कायम रह गए, कांग्रेस बेदखल हो गई। कांग्रेस पार्टी ने जनसंख्या नियंत्रण को जबरदस्ती करने की कार्यनीति अपनाई, निष्फल हुआ। और सीखना चाहिए उस दौर में। अरे सीखने में कोई दिक्कत है? नीतीश कुमार जी घोषणा पत्र पर नहीं काम करते हैं, निश्चय पर, कमिटमेंट पर। तो कमिटमेंट की राजनीति होती है। अगर कहा कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तब पहुंचा दिया, तो कमिटमेंट। नीरज जी, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि अवास्तविक वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना कठिन या असंभव है। जिस तरीके से किसी भी राज्य में जहां उनकी राज्य कांग्रेस की, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इस सभी जगह स्वास्थ्य बंद से बदतर हो गया और अधूरा झूठ जो है इन राज्यों के साथ एक भयानक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान संदर्भ में अपनी राय व्यक्त किया है, लेकिन यह सच है कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब कायम रह गए, कांग्रेस बेदखल हो गई। कांग्रेस पार्टी ने जनसंख्या नियंत्रण को जबरदस्ती करने की कार्यनीति अपनाई, निष्फल हुआ। और सीखना चाहिए उस दौर में। अरे सीखने में कोई दिक्कत है? नीतीश कुमार जी घोषणा पत्र पर नहीं काम करते हैं, निश्चय पर, कमिटमेंट पर। तो कमिटमेंट की राजनीति होती है। अगर कहा कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तब पहुंचा दिया, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तो खोल दिया, 10 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं, पॉलिटेक्निक 5 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं। तो निश्चय की बुनियाद पर अब जनता यह समझना चाहती है कि चुनावी वायदे नहीं रहे, बल्कि उसको अमली जामा पहनाया जाए। इसलिए हमारी समझ से कांग्रेस पार्टी इन्हीं छद्म वादों के चलते, जिसका वो पूरा नहीं कर पाने के कारण राष्ट्रीय पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमटती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ, छठ, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषज्ञ थे जो अपनी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। अब आदरणीय मल्लिकार्जुन साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम तो उनसे उम्मीद यही करते हैं कि श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि देश के अंदर में गरीबी हटाओ का नारा आपने दिया था, क्या गरीबी हट गई? आपने नारा दिया था जनसंख्या नियंत्रण को जबरदस्ती करने का, क्या वह सफल हुआ? आप इस बात का प्रमाण दीजिए कि नई आर्थिक नीति आने के बाद कांग्रेस में पंडित नेहरू के शासनकाल में जिन बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर की स्थापना हुई थी, उसमें तालाबंदी का गुनाहगार कौन है? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को यह बात बताना चाहिए कि समाज के दलित समूह के लोग
जो वंचित तबके के लोग थे, जिनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए कार्य योजना बननी चाहिए थी, उन योजनाओं को अपने अमली जामा नहीं पहनाया तो आज राजनीति की दुर्दशा हो गई। और सबसे अच्छा तो जो आपका राजनीति का श्रृंगार है, क्या गांधी परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण फलक होगा? इसके अलावा दूसरे को मौका नहीं? मल्लिकार्जुन खड़गे में गुण नहीं है क्या? दलित समूह के हैं, मजबूत आदमी है, बौद्धिक रूप से मजबूत आदमी है, लेकिन नेतृत्व उनका नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन नेतृत्व उनका नहीं मंजूर होता है। उसके लिए राहुल गांधी जी ही आगे आएंगे। मौका मिला तो प्रियंका गांधी को लड़ा दिया। किसी समाज के कमजोर तबके को आदमी को चुनाव आप लड़ा देते राहुल गांधी के सीट से, तो बात समझ में आती। इसलिए इतिहास को मत कुरेदिए। अगर कुरेदिएगा तो वो पन्ने आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस को Atul Garg, director of the Delhi Fire Service, reported that the agency received an unprecedented 403 fire calls on the day following Diwali, shattering all past records for the last 12 years. This surge in fire incidents highlights the challenges faced during the festive season, particularly due to the use of fireworks and other celebratory practices. Garg emphasized the importance of safety measures and public awareness to prevent such incidents in the future, noting that the high number of calls underscores the need for greater vigilance during festive celebrations. The statistics reflect ongoing concerns about the fire safety in urban areas, especially during events that traditionally involve fire hazards. पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। सर क्या कहेंगे, कितने आंकड़े सामने आए? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कल दिवाली मनाई थी और कुछ लोगों ने जो है परसों भी दिवाली मनाई थी, तो एक्चुअली दिवाली 2 दिन हो गई, तो दोनों दिन ही रिकॉर्ड टूट गया है। अगर आप हम लोग रात के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक लेते हैं, तो अगर पिछली मतलब दिवाली जो कल गई, परसों जो गई दिवाली, उसमें जो था हमारी करीब 320 के 18 के कॉल हुए। और इस बार जो है आज अगर आप आज का आंकड़ा लें तो इस बार रिकॉर्ड टूट गया, 400 क्रॉस कर गए। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। दिल्ली फायर सर्विस ने 24 घंटे के अंदर कभी भी इतनी कॉल कभी भी अटेंड नहीं की, आज तक का रिकॉर्ड है। गर्मी आ गई, पुरानी दिवाली गई। इसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो ज़्यादातर जो कॉल थी, मतलब काफ़ी कॉल जो है उसमें उसकी मिली जो कूड़ा करकट या कहीं गार्बेज पड़ा था, तो ये प्रतीत ये होता है मेरे को, ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी लगता है कि ये शायद पटाखे लोगों ने चलाए होंगे, कोई गिरा, कोई चीज़ गिर गई, कुछ उस वजह से हो सकती है। क्योंकि 100 कॉल एक बड़ा नंबर है, कूड़े करकट का, गार्बेज का, वो कॉल भी अटेंड की गई, क्योंकि हम सारी कॉल अटेंड करते हैं। गार्बेज भी पोल्यूशन देता है तो उसको भी जल्दी से जल्दी बुझाते हैं। तो करीब 100 कॉल के आसपास आई, तो ये मुझे लगता है बिकॉज ऑफ क्रैकर ही होनी चाहिए, अदरवाइज तो कोई ऐसा रीजन नहीं कि अचानक से एक रात में 100 कॉल कैसे आ सकती है। इसके अलावा सर बाकी अगर 300 कॉल को डिफरेंशिएट करें, इंजर्ड भी हुआ या कहाँ? आज की जो डेटा है उसमें इतना इंजर्ड नहीं हुआ है। जो दूसरा दिन जो था हमारा उसमें छोटे है, उसके डेटा में कोई डेथ नहीं हुई है अभी भी। जैसे बाद में आपको पता लगा दिवाली वाले दिन जो 31 को जो आई थी उसमें 3 डेथ हुई थी। ऑफकोर्स वो फायर की वजह से नहीं थी, किसी और वजह से थी, तो डेथ का भी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। बट ज़्यादातर कॉल फायर की हैं, चाहे वो कूड़े करकट में लगे, घर में लगे, कहीं लगे, बट मैक्सिमम कॉल जो है यू कैन से 70% कॉल इज फ्रॉम फायर, देन रेस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट रेस्क्यू और जो हमारी कॉल होती हैं जानवर रेस्क्यू, ये वो सब है। और सर अगर पिछले 12 सालों का अगर हम आंकड़ा देखें तो ये कॉल है, क्या कहेंगे सर? देखिए ये कॉल बहुत ज़्यादा है। 400 कॉल दिल्ली फायर सर्विस ने आज तक कभी 24 घंटे के अंदर अटेंड नहीं करी है, चाहे वो किसी भी तरह की कॉल हो। मतलब हमारा गाड़ी गया, हमने उस कॉल को अटेंड किया, ये अनप्रेसिडेंट है। 400 कॉल अटेंड करना और 24 घंटे में आप ये भी देखिए हमारे जवानों ने कितना कठिन कार्य किया, कैसे कैसे उसको निपटा होगा। 400 कॉल इन 24 आवर्स, इट्स वेरी वेरी टफ मतलब टास्क फॉर अस आल्सो एंड वेरी टॉल ऑर्डर, यू कैन से कि हम इसके लिए इतने प्रिपेयर नहीं थे। बट यस वी हैव अटेंडेड ऑल द कॉल। और कोई बड़ा कॉल नहीं हुआ, सब कॉल छोटा था, गए बुझा दिया, 1 गाड़ी लगी, 2 गाड़ी लगी, 4 गाड़ी लगी, ऐसा नहीं कोई कॉल आया जिसमें कि आपको 20-25 गाड़ी भेजनी पड़ी, ऐसा कॉल नहीं है। तो सभी कॉल टाइम में अटेंड भी हुई और कल ट्रैफिक भी बहुत कम था। मैं इस बात को भी कंट्रीब्यूट करता है ये कि हम जल्दी पहुंच सके। अगर ट्रैफिक होता तो हम शायद जल्दी पहुंचते नहीं, कॉल भी बड़ी हो जाती। काफी चुनौती होती है सर, आप ये बता रहे हैं कि हम इतने तैयार नहीं थे, इतनी कॉल आ जाएंगी। इतना हमें उम्मीद नहीं थी। हमें तो ये उम्मीद थी कि कॉल घटनी चाहिए, बिकॉज
क्रैकर बैन है, पर हुआ ये रिवर्स हो गया, मतलब कॉल घटी नहीं बढ़ गई। तो इसको लेकर सर किस किस प्रकार की चुनौतियां आती है फायर डिपार्टमेंट को अगर कॉल्स आ जाती हैं तो? देखिए चुनौती यही आती है, क्योंकि आप जब कॉल जाते हैं, हमारा फिजिकल वर्क है, आप जाते हैं आग बुझाते हैं, उसमें टाइम लगता है, फिर आप वापस आते हैं गाड़ी को रिफिल करते हैं, तो उसमें टाइम लगता ही है। तो यही चुनौती आती है कि हाउ टू अटेंड ऑल द कॉल्स, आप हर कॉल को अटेंड भी करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है। तो हम इसमें क्या होता है, मान लीजिए कूड़े की आग लगी और मेरे पास 2 कॉल इकट्ठी आ गई घर में, तो आई विल सेंड फायर टेंडर फर्स्ट, तो घर वाला कूड़े वाले में आई कैन डिले इट फॉर 5 मिनट कि जैसे गाड़ी भर जाएगी, क्योंकि देखिए गाड़ी में पानी भी भरना होता है, गाड़ी जाती है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि आदमी थक जाता है, इट इज़ ए फिजिकल वर्क, आप जाते हैं उतरते हैं, हौज लगाते हैं, हौज इज ए वेरी प्रेशराइज थिंग, इसमें बहुत ताकत लगती है, फिर गए फिर वापस आए फिर पानी भरी, तो इट इज रियली टफ जॉब, इससे मैनुअल जॉब। कितना लगभग सर स्टाफ आपका काम कर रहा था? स्टाफ तो सारे था कल भी, इसलिए क्योंकि हमें आइडिया था कि छुट्टी किसी को छोड़ा नहीं है, आज से छुट्टी छोड़ना शुरू करेंगे। सारा स्टाफ पूरा था, सारे अफसर थे, 2 अफसरों को बहुत इमरजेंसी थी, एक किसी की मदर की डेथ हो गई तो उसको छुट्टी दी थी, बाकी किसी को दी नहीं है छुट्टी। 3000 के आसपास लगभग 3000 के आसपास हम सभी थे, मतलब हमने जो दिवाली वाले दिन रखे थे वो आज भी रखे थे, क्योंकि हमें 2 दिवाली हो रही है, पहले से ही हो गया था, कुछ लोग 31 मना रहे, कुछ 1 मना रहे, तो ये कन्फ्यूजन था ही, तो स्टाफ पूरा रखा गया था, ज़्यादा किसी को छुट्टी दी नहीं गई थी। थैंक यू सर। दिल्ली का भी रिकॉर्ड टूट गया है और पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, सर क्या कहेंगे, कितने आंकड़े सामने आए? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कल दिवाली मनाई थी और कुछ लोगों ने जो है परसों भी दिवाली मनाई थी, तो एक्चुअली दिवाली 2 दिन हो गई, तो दोनों दिन ही रिकॉर्ड टूट गया है। अगर आप हम लोग रात के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक लेते हैं, तो अगर पिछली मतलब दिवाली जो कल गई, परसों जो गई दिवाली, उसमें जो था हमारी करीब 320 के 18 के कॉल हुए, और इस बार जो है आज अगर आप आज का आंकड़ा लें तो इस बार रिकॉर्ड टूट गया, 400 क्रॉस कर गए, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। दिल्ली फायर सर्विस ने 24 घंटे के अंदर कभी भी इतनी कॉल कभी भी अटेंड नहीं की, आज तक का रिकॉर्ड है। गर्मी आ गई, पुरानी दिवाली गई। इसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो ज़्यादातर जो कॉल थी, मतलब काफ़ी कॉल जो है उसमें उसकी मिली जो कूड़ा कोई चीज़ गिर गई कुछ, उस वजह से हो सकती है, क्योंकि 100 कॉल एक बड़ा नंबर है, कूड़े करकट का, गार्बेज का, वो कॉल भी अटेंड की गई, क्योंकि हम सारी All Souls Day, known as Cemetery Tirunal, is being celebrated at the Holy Panimaya Annai Church, commemorating the day dedicated to honoring the deceased. This solemn occasion brings together the community to pay their respects to loved ones who have passed away, with special prayers and rituals performed in the church and cemetery. The event emphasizes the significance of remembrance and the belief in the communion of saints, fostering a sense of unity among attendees as they reflect on the lives of those they have lost. The celebration not only acknowledges grief but also offers solace and hope for the souls of the departed.
on in Godhra city, prompting immediate response from local fire services. The blaze has raised concerns among nearby residents due to the potential hazards associated with burning rubber and stored materials. Firefighters are currently working to contain the flames and prevent the spread of the fire to adjacent structures. Authorities are investigating the cause of the fire and there have been no reports of casualties so far. The incident highlights the importance of safety measures in storage facilities to mitigate fire risks. आज करीब सुबह 4 बजे गोधरा फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिला था। गांधी पंप के सामने नंदिनी साइकिल स्टोर है, वहां पे फायर हुई थी। वहां हमारा फर्स्ट टर्न आउट गया था। और That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.